ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। आपको भी बधाइयाँ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਡਾਢੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੋਟ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸਾਂ ਬੁਲੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਟ੍रेनिंग ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ आपे सीखी आपे सीख के दिए तो सा अच्छा चलो ठीक है जी। Yeah, बताओ ना, how do you know? You must tell them. हाँ? Parents, yes. ये भी तो आधे मुल्तानी है। पंजाबी मुल्तानी दा मिक्सचर है। So you tell them, where are you from? Where are your parents from? I am from Sargodha. Sargodha. My parents are from Your parents belong to Sargodha. Okay, that's good information for us. सरगोदा भी वो पाकिस्तान में ही होगा ना। पास में है मुल्तान के। मुल्तान से पाकिस्तान होना हाँ जी अनडिवाइडेड। They all came from Sargodha. ठीक है जी। असा बह के सारी गलबात करे सो इना दे इनकी नाल। दादी जो है बहुत अच्छी, वो जो बोलते मुल्तानी से मिलती जुलती थी। अच्छा That's how she knows a little यहाँ bit. पे आके सेटल हुए and then अच्छा हाँ, कैथल में तो काफी आए। फिर वहाँ पे उन्होंने बिजनेस शुरू किया मेरे दादी ने। हाँ तो बड़ा फ्लरिशिंग बिजनेस था। हाँ हेलो व्यूअर्स, मुल्तानी इंडियंस चैनल दे सारे व्यूअर्स को एक बारी वल नमस्ते ते सब दा स्वागत है। असां पिछले वीडियो दे विच गाल कीती है मेजर जनरल संजीव खन्ना जी दे नाल, ते अज एक बारी वल असां उन्हां दे नाल गलबात करेंदे पे हाँ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਯ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਸੂ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ असां चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि तुसां होर अपनी जीवनी दे बारे दे विच कुछ गलबात साडे नाल करो ते तुसां साकू ते व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस भी कराओ। They, my wife, one and only, we got married sometime in 1984. She is a naval officer's daughter, and her nana was a captain way back in the Indian Army, and he also saw a little bit of the British Army. So she's a true Fauji wife, and with strong Fauji antecedents. So she's got Fauji blood in her, running in her veins, and with her support only, I could continue and do well in the army. She's been a pillar of strength, and many a times guided me on the right path and helped me in my career. In the army, the wife plays a very significant role. She's a pillar of strength. She is also half employed by the army in looking after the welfare of the families. It's a very important role to play. So looking after the Jawans' families and also bringing up our own family right from being a young girl till the time you retire and even thereafter. She has been a pillar of support. So I leave you to my wife Anita, and she'll tell you more about yourself
She's also got a background of her grandparents were from Sargodha. Rest I leave, she'll narrate it herself. Over to my wife Anita. ਅਰਨੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਕੂ ਇਹ ਦਸਾਓ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੋ ਸਪੈਂਡ ਪੇ ਕਰੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਕੂ ਇਹ ਦਸਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। मेरे फादर नेवी में थे और चाचा आर्मी में थे ऐसे, और नाना भी, मामा भी, वो भी आर्मी में थे। तो बैकग्राउंड यही है शुरू से। इवन मम्मी के कज़न्स वगैरह भी सब फौजी हैं, तो स्ट्रॉन्ग फौजी ब्लड है हम लोगों में। फिर आगे मुझे ये बड़ा था कि मैं भी एक फ़ौजी से शादी करूं, तो एक ये फरमाइश मैंने अपने पेरेंट्स के आगे रखी थी कि भाई सिविलियन तो ढूंढना नहीं, मेरे लिए एक फ़ौजी ही से ही मैं शादी करूंगी। तो बड़ा अच्छा निकल गया हमारे ऑलमोस्ट 38 years of service, and now we are retired, settled in Delhi and enjoying our retirement, the second innings. And तो ये एक बहुत ही हमारे लिए अच्छी खुशखबरी वाली बात भी है कि आपकी इच्छा शुरू से थी कि एक फ़ौजी से ही मेरी शादी हो, और वो आपके पेरेंट्स ने आपकी बात को मानते हुए उस तरह ही किया, और एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र आपके साथ में जुड़ा। और एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जैसे बताया कि जो ग्रैंडफादर हैं वो भी फौजी बैकग्राउंड के ही हैं, तो वो कितनी पुरानी बात है? वो तो बिफोर पार्टीशन के टाइम की बात होगी। बिफोर पार्टीशन, यस। तो किस जगह पर वो थे और किस जॉब में थे फौज में? वो फौज में एक डॉक्टर थे। ही वाज फ्रॉम एएमसी, आर्मी मेडिकल कोर। हाँ जी। सो ही वाज अ पैथोलॉजिस्ट। तो इतने उस ज़माने में मैंने कभी सुना नहीं कि भाई इस रैंक तक भी कोई पहुंच सकता है। तो हाँ जी, ये 1930-35 की कोई बात होगी, बहुत पुरानी बात। तो किस भी नहीं, मुझे लगता है 10 या ऐसे होगा। 1910 के आसपास। 38 बॉर्न है, 1938। हाँ जी। तो किस जगह पर रहते थे उस जमाने में? उस जमाने में ज़्यादा मैंने उनको देहरादून ही सुना है मैंने, क्योंकि वो गोरखास के थे। तो अच्छा, ज़्यादा जो मुझे कुछ याद है वो देहरादून ही याद है। हाँ जी। क्योंकि फिर वो गुजर गए। फिर उन्होंने असल में रिटायरमेंट के बाद फिर अनंतपुर साहब के आश्रम को ज्वाइन कर लिया, और अच्छा, हाँ जी। वही अपनी लाइफ सेवा में स्पेंड करी। तो आपके फादर मदर जो हैं वो उधर सरगोदा साइड में थे उस जमाने में? नहीं, मेरे फादर सरगोदा साइड के हैं, दादी और मम्मी तो आई थिंक इंडिया में ही थी। अच्छा। वो बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए। ठीक है, आप अपने फादर के बारे में थोड़ा बताइए, उन्होंने कैसे फौज में ज्वाइन किया और कहाँ कहाँ पर रहे? My father, I think he was a direct entry in the Navy, and he was from the education corps. हाँ जी। तो एजुकेशन ब्रांच के थे। तो अपना हम लोग पहले तो वो शिप में बहुत ट्रैवल करते थे शुरू में इनिशियली। हाँ जी। तो रशिया, कभी 6-6 महीने INS विक्रांत, INS नीलगिरीज, इन सारे शिप्स में इनके एक साल पोस्टिंग। उनका नाम भी मेंशन? हाँ, उनका नाम था कमांडर मक्कर। ही इज नो मोर नाउ। हाँ जी। सो वो हमने देखा, हम लोग पोर्ट में रहते थे अपनी मम्मी के साथ, और वो शिप में मतलब एक साल शिप की पोस्टिंग में घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे बीइंग इन द एजुकेशन ब्रांच, he became the principal of सैनिक schools.
and Okay. then from his hands many children passed out and they joined the defense services. हाँ जी. So my brothers also, they are from the military school only. तो Okay. वो ऐसा बैकग्राउंड है हमारा, मतलब थरो फौजी बैकग्राउंड, उसके अलावा हमें कुछ इतना समझ में भी नहीं आता सिविल. हाँ जी. I feel very proud of my father that he could give so many soldiers to the country. हाँ जी. Being a principal of a Sainik school, so many they, students yeah, have so they undergone were in training. thousands. The children used to pass out, and all of them who pass out from military school or Sainik school, they all go to the army, navy or air force. So he was there for 7 years. He was the principal of Sainik school Korukunda, Vijayanagaram, which is very close to Vishakhapatnam. हाँ जी. So that was a time when I got married also, and बड़ी अच्छी लाइफ थी, उनके साथ भी बड़ी अच्छी लाइफ थी. Then I got married to an army officer. That was my choice to marry him. हाँ जी. And thereafter from the navy I saw the other side of life, because navy बिल्कुल अलग है आर्मी से. Army is more glamorous and more showbiz is there in the army. Navy में इतना नहीं है, navy थोड़ा सा different है. So from the sea we started living in the land, you know. naval officer की बेटी होने के कारण sea के किनारे हम लोग बहुत रहे हैं. हाँ जी. तो उसके बाद आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने की वजह से देन वी वर इन जम्मू कश्मीर एंड भोपाल एंड Assam and many weird places, and we are happily married now. It's almost 38 years. तो आपका जो अब एक्सपीरियंस बीइंग अ वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल टुडे, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहें? My experience as an army officer's wife is wonderful. My first station after getting married was Udhampur, and my husband came to pick me up from Jammu, and then we by jeep we traveled to Udhampur. So he took the driving, the steering in his hand. He said, वो जैसे पुराने पिक्चरों में होता था, यू नो, राजेश खन्ना इज ड्राइविंग एंड सिंगिंग एंड गोइंग. हाँ जी, वो फिल्म भी एक आई थी जिसमें. ओके. सो ये ड्राइविंग सीट पे अपना बैठे हुए थे एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, एंड हमने ड्राइवर को पीछे भेज दिया कि तुम पीछे बैठो. सो in 2 hours we reached Udhampur, and there they were, you know, all the officers were waiting to greet us, and his commanding officer, his CO, he was a colonel. That time my husband was a captain. So this is the time when the initial year of after your marriage. Yeah, this is just 2 months after marriage, because we got married during the time of when Indira Gandhi was assassinated. So I couldn't join him initially. This is after 2 years of our marriage in 84. Okay. So the commanding officer just asked me, young girl, 22 years old that time. He said, so how was your journey, ma'am? So I said, fine, uncle. For me, from a daughter becoming a wife, it was very difficult. I mean, दिमाग में ये बात मेरी आई नहीं कि अब मैं वाइफ बन गई हूँ किसी की. So everybody had a good laugh, and they started making, you know, fun of me that मैं uncle बोल रही हूँ. Then slowly it dawned into my head. It धीरे धीरे सिंक इन हो गया कि अब मैं डॉटर नहीं रह गई हूँ. नाउ आई एम अ वाइफ. So slowly responsibilities came. In a year I had my first child, and then thereafter, of course, life became little tough. Being a army officer's wife, आपको कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन भी डील करनी पड़ी लाइफ में कि जब
ऑफिशियल ट्रेनिंग को टफ टाइम भी आया होगा? Yes, there were tough times initially when my जब मैं जिद पे अड़ी हुई थी कि मैंने एक फौजी से शादी करनी है, तो my father used to tell me that whole life you will be traveling in Shaktimans and धक्के खाती रहेगी, and he never encouraged me because थोड़ी आर्मी लाइफ नेवल लाइफ से थोड़ी टफ है, इट इज़ टफर. सो बट आई वाज वेरी, मेरे मतलब वो यूनिफॉर्म घुसी हुई थी मेरे दिमाग में कि नहीं मैंने करनी है तो फौजी से शादी. सो आई वाज 8 months pregnant and there was no way to travel from Udhampur to Jammu. Young officer facilities तब नहीं इतनी मिलती थी, तो मैंने एक शक्तिमान में अपने 2.5 घंटे की शक्तिमान जर्नी. ट्रक जो आर्मी का ट्रक होता है, आर्मी ट्रक विच इज सपोज टू बी वेरी बिग, और उसमें ना लगेज इधर उधर किया जाता है और कैंटीन का हाँ जी, सामान और बड़े बड़े कार्टन्स, हाँ जी, और उसमें कुछ फिक्स चेयरें बेंचें कुछ नहीं होती हैं, बस उसमें कुर्सी रख दी जाती है और तुम उस कुर्सी में बैठ जाओ, और वो लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट आप भी जाओगे कुर्सी के साथ, और राइट जाएगा तो आप भी राइट जाओगे. हाँ एंड जी. 8 months प्रेग्नेंट. सो तब मैंने अपने पेरेंट्स को, फादर को याद किया और मैंने बोला ये शक्तिमान के धक्के, इन्हीं को मेरे फादर बोल रहे थे कि भाई तो अब सारी जिंदगी शक्तिमान के धक्के खाती रहेगी. बट वो धक्के भी मेरे लिए मुझे मंजूर थे क्योंकि दिस वाज माय चॉइस, आई वांटेड टू मैरी अ फौजी. तो ये सब तो मुझे पता ही था कि आर्मी लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी. हम लोगों ने डिफेंस बैकग्राउंड की हूँ तो मुझे मालूम है ये. बट इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी फ्रॉम कैप्टन्स वाइफ to a general's wife, a VIP's wife. So it was tough, but together we could reach there. So बीच तो में बहुत जैसे जनरल साहब का एक अपना प्रोफेशनल और आर्मी का करियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ कैप्टन रीचिंग टू द जनरल, तो उसी के साथ साथ आपकी भी एक जर्नी उनके साथ में चलती रही और उस जर्नी के कई सारे फेजेस बीच में आपने देखे हैं. विच इज़ द बेस्ट टाइम और फेज ऑफ दैट लाइफ दैट यू रिमेंबर, जो आपको याद आता है? I think all phases were very good. With age, young age में कम था, छोटे बच्चे थे तो वो भी अच्छा था. We used to move on a bike. We never had a car and everything. That was also a wonderful experience. After that, as you grew in rank, we had appointment houses and lots of perks and lots of manpower. That was also very nice. But that time, what I used to miss was my children, because when we wanted big houses, our children, we used to get small houses. और जब हमें बड़े घर मिले तो हमारे बच्चे साथ नहीं थे हमारे, तो वो मुझे बड़ा लगता था कि ये फौज ऐसी क्यों करती है कि जनरल बन गए तो आपको इतना एकड़ में घर दे दिया, इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं और काजू के पेड़ हैं और सब कुछ है, और आप उसमें 2 ही जने घर में रह रहे हो. तो ये एक है जो फौज का वो है. बट ऑल स्टेजेस आर वेरी गुड, ऑल फेजेस समहाउ मैंने तो एंजॉय किया. कम था उस पर भी वी वर वेरी वेरी हैप्पी, एंड ज़्यादा था तो भी वी वर वेरी हैप्पी. वी कुड इनफैक्ट जब हायर रैंक्स में पहुंचे तो हम अपने जूनियर्स को लुक आफ्टर कर सकते थे क्योंकि हमने वो जर्नी देखी है ना. तो इन अ वे वी वर वेरी गुड टू आवर जूनियर्स, क्योंकि मुझे लगता था कि इनको हम वो फैसिलिटीज़ दें जो हमें महसूस होता था कि हमें नहीं मिली एज अ यंगस्टर्स. तो मेरे हस्बैंड ने जब जनरल का रैंक लिया तो मैंने सबसे पहले जाके अपने उन पुराने घरों को इम्प्रूव कराया, वो पूरी कॉलोनी को. मैंने इनको बोला कि इस एरिया को आप इम्प्रूव कराओ, क्योंकि मैं एज ए यंग ब्राइड वहाँ रही हुई थी.
और उस पर्टिकुलर घर को मैंने पॉइंट आउट करके इनको बोला कि ये आप ठीक कराइए, तो हम बहुत कुछ कर पाए फौज में। इस एक्सपीरियंस है ना, एज अ यंग ब्राइड, फिर आपको ये पता होता है लूप होल्स ना, तो तो वो जो एरियाज हैं जहाँ बिगनिंग में आपने मैरिज के इमीडिएटली आफ्टर कुछ टाइम स्पेंड किए, तो अगेन आफ्टर सम नंबर ऑफ इयर्स जब सीनियर रैंक होकर के भी हाँ वापस आप उस जगह जाके रही थी? हाँ हाँ हाँ, हम रहे थे। एंड इट इज़ अ फुल सर्कल, लाइफ वापस आती है, बाउंस बैक कर, मतलब फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। यू विल नॉट बिलीव, इन सिकंदराबाद, आर ओल्ड हाउस जिसमें मैं 28 साल पहले रही थी, वो जस्ट 100 मीटर्स दूर था एज अ कैप्टन वाइफ। और अब मैं एक जनरल के घर में रह रही हूँ, जो कि मतलब इट हैज, कोई आप फ्रूट का नाम ले लो, वो फ्रूट के ट्रीज से तो हम इसमें ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक टाइम में अपने उस छोटे वाले घर में रह करके जनरल का घर देखती थी, देखती थी। बिल्कुल, बाद में आप उसी जनरल वाले घर में घर फिर से जा मैं उस करके घर पे रही। गई, हाँ और जी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 28 साल में हमने ये 100 मीटर की दूरी तय की है, पर हाँ ये जी। कितनी बड़ी दूरी है ये, हाँ, इसमें कितनी हमें 28 हाँ, साल लग गए। उस 100 मीटर की दूरी को तय करने में आपको 28 साल लगे, 28 और साल उसके लगे साथ उस में घर। उस छोटे घर से इतने बड़े घर में भी पहुंचे आप। बिल्कुल, पर मैं उस घर को फिर भी, मुझे वो घर बड़ा प्यारा था। मैं उस घर में जाके जो उसमें रह रहा था उसको मिल के आई, उसको मैंने ये बात बताई, तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, तो मैंने बताया मैं उस घर पे रहती हूँ और मेरे हस्बैंड जनरल हैं। और मुझे 28 साल में अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये दूरी तय की है मैंने, 100 मीटर की दूरी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आज की यंग जनरेशन भी बहुत सारे प्रोफेशन में जाना चाहती है, जाती भी है। बीइंग वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर, आपको क्या लगता है, आप क्या एडवाइस आजकल की यंग जनरेशन की लड़कियों को, उनको आपकी तरफ से होगी कि फौजी ऑफिसर से शादी करना या खुद फौज में जाना? बिंग क्योंकि अब तो बोथ आर लेडीज के गुड। लिए भी फौज में बहुत सारी शादी ऑप्शंस भी आ गई करना हैं। एंड टू बी इन द आर्मी योरसेल्फ इज वेरी गुड, क्योंकि मेरे को तो इस प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन समझ ही नहीं आता। बिकॉज मैं तो बिल्कुल थरली हेड टू टो आई एम अ फौजी ब्लड है मेरे अंदर। तो मुझे इस प्रोफेशन से ज़्यादा अच्छा कोई प्रोफेशन लगता ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी, आप जब यूनिफॉर्म में अपने बेटे या हस्बैंड को देखो या अपनी बेटी को देखो, तो वो गर्व से चेहरा, मतलब जो एक खिल उठता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या एक फीलिंग होती है। जब मैं अपने हस्बैंड को रोज तैयार होके ऑफिस जाते हुए देखती हूँ, 10 जने सलूट मारते हैं, जय हिंद साहब और जय श्रीमान और ऐसे ये सारा बोलते हैं। वो एक सलूट को देखने के लिए मैं, मतलब उसी से मन खुश हो जाता है। मतलब इतनी इज्जत एक फौजी की है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक जवान भी हो उसकी भी बड़ी इज्जत है फौज में। यूनिफॉर्म को आप जैसे ही देखोगे तो आपको एक बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग आती है, जो मैं एक सिविलियन को कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे मालूम मालूम नहीं, बट पता नहीं, फौज फौजी होना इज द बेस्ट प्रोफेशन। एनी सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें से तीनों में से कोई भी हो, बट दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी। मुझे और कोई नहीं इतना पसंद कुछ भी, और मे बी इस आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। इस पूरे अपने एक्सपीरियंस में क्या आपको लगता है कि आपने कुछ एक जो सिविलियन स्टाइल ऑफ लिविंग है उसको लूज किया है, जो और लोग आपके रिलेशन में, आपके और जान पहचान में लोग उसको उस तरह से एंजॉय करते हैं या जीते हैं? हम फौजी लोग, क्या होता है ना, कम में भी जी लेते हैं। हमारा स्टाइल सिविलियन से भी ज़्यादा होता है। उस कम रिसोर्सेज में भी हम वैसा स्टाइल से ही जीते हैं। तो मैंने कभी कुछ मिस नहीं किया। मुझे लगता है कि
सिविलियन से हम अच्छे ही हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ मिस नहीं किया मैंने। अगर वो स्टाइलिश है तो हम लोग सुपर स्टाइलिश हैं, उनसे ज़्यादा ही है हमारा स्टाइल। And if you all know, the army children are doing very well. There are film stars, there are celebrities, and in many fields you will hear about army children. They are really doing very, very well. So many beauty pageants are held at the Miss Universe level पे, Miss World level पे हमारे सारे आर्मी ऑफिसर्स के ही बच्चे हैं. You will see them shining anywhere, wherever you go, you will find them. They overshine. जहाँ भी आप देखोगे उनको, आपको पता लग जाएगा ये फौजी बच्चा है. वो उनका एक अलग ही मतलब तरीका होता है. ग्रोइंग हमने होती भी है, कई बार they ये are just ऑब्जर्व किया है कि जो फौजी लोगों की फैमिलीज होती हैं, उनका एक वे ऑफ लिविंग या एक उनका जीने का तरीका थोड़ा सा अलग. सिविलियन लाइफस्टाइल से अलग दिखता है. तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन मेरे ख्याल से इतना हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं कि ये इसी टाइम से होना है और ये इसी तरह से टेबल लगनी है और यहाँ फोक होना है और यहाँ नाइफ होना है. एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन लिविंग फ्रॉम द टाइम वी एंटर द आर्मी एज अ ब्राइड. व्हेन आई एंटर्ड, वो हस्बैंड आपको टेबल मैनर्स से मतलब वहाँ से ग्रूमिंग शुरू हो जाती है. तो वो आपका ना पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है. अब जैसे घर में एक गुलदस्ता ही पड़ा हो तो वो टेढ़ा पड़ा हो, तो एक हम लोग के खून में ही है ये कि ये टेढ़ा अगर पड़ा होगा तो चलते चलते मैं उसे सीधा करके ही आगे जाऊंगी. पता है कि हमारा कुछ ऐसा नेचर से ही बन जाती है कि तो उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते करते वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है. मतलब कि इसी तरीके से सब होना है, ऐसा ही पार्टी है तो ऐसे होना है, और टेबल है तो ऐसे वेल लेड आउट होगा. घर होगा तो इट शुड बी स्पिक एंड स्पैन. कपड़े होंगे तो स्पिक एंड स्पैन. यूनिफॉर्म होगी तो एक चीज़ टेढ़ी नहीं होगी, चमकते हुए स्टार्स होने चाहिए. जूता हो तो ऐसा कि उसमें शक्ल दिखे. तो बच्चे भी अपने हो तो उनका हेयर कट बिल्कुल छोटा होना चाहिए. मतलब ऐसा ही है कुछ. आई डोंट नो, आपके हस्बैंड जो हैं वो तो फौज में कमांड करते रहे हैं अलग अलग जगहों पर. घर में कौन कमांड करता है? घर में I mean, he has his area of command, I have my area of command. तो मतलब घर में दोनों की कमांड चलती है? दोनों की बिल्कुल चलती Okay. है. I don't interfere in his work and he doesn't interfere in my work, but we take each other's suggestion जरूर लेते हैं, because few things inputs only I can give him. बिकॉज आर्मी में ये होता है कि ना हमें वेलफेयर भी देखना होता है फैमिलीज का. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच माय हस्बैंड कैन नेवर कम टू नो. एज बीइंग अ लेडी, I talk to ladies, so only I can give those inputs to my husband, and those are very genuine inputs. So आर्मी में कुछ ऐसा है कि So you have been involved in the Yes. army families welfare yes, AVA. programs. AVA is Okay. the name of the association which Okay. deals with Army Wives Welfare Association. उसमें क्या क्या एक्टिविटी आपने क्या क्या उसमें रोल प्ले उसमें किया है? we teach them many things about computers, and there are many knitting, sewing classes. ये वो अभी तो आजकल ये ज़माना नहीं है, बट जनरली ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है. ट्यूशन्स भी दी जाती हैं, कुकिंग भी होता है. देन दे आर told about the facts of, some are actually from a very uneducated background, these जो जवानों की wives होती है ना. So we have to make them aware of their rights and what मतलब जब एक फौजी की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसके हस्बैंड के सारे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा वो मिलते नहीं है. तो इनको हम ये सारी अवेयर करते थे हर चीज़ के बारे में ना, कि ये आपके राइट है.
मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर में आपका नाम भी लिखा हुआ है कि नहीं, एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, क्योंकि ये लोग वाइफ्स को जनरली एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वाइफ्स को ये लोग साथ नहीं रख पाते, तो उनको ये अवेयर, जनरली अवेयर करना, आजकल तो वो हमसे भी ज़्यादा अवेयर हो So गए basically हैं to make them aware and also to help and about their support rights and support them support in them. the life, in the settling down in the life. या कई बार इनका हाँ जी। होता है कि इन लॉज से कुछ हो गया, ये हो हाँ गया, जी। सो वी काउंसिल देम जनरली कि ये छोटी चीज़ों के लिए यू डोंट हैव टू आपके हस्बैंड एक मुल्तानी फैमिली से हैं, तो आप के पेरेंट्स भी क्या उसी बैकग्राउंड से हैं? No, my father was not from Multan, but my dadi used to tell me that they used to live in Sargoda, and during the partition, they all had to leave Pakistan and come to India, and they settled in a place called Kathal in Haryana. कैथल, And, yeah. okay. So there, from scratch, they started their life. How Initially, did they arrive? Do you have information about that? they at were the all time of hiding partition? in the trains, and Okay. there were dead bodies everywhere. And she used to say that we somehow saved our life and we came. And there was So with at the many time of hardships. partition, they managed to reach to Kathal in India. Yeah, safely somehow they Okay. managed to reach. Then the life was very tough. They used to do all kinds of things to earn a living, like so many things. मैंने ये भी सुना कि माचिस भी बेची थी, just to जब शुरू में yeah, यहाँ हाँ पर जी, आए हाँ थे, जी, yeah. तो तो देन उसी से मेरे दादा ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया. ही हैड अ वेरी वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस इन कैथल. ये स्पेस की उनकी शॉप थी. इनफैक्ट ही हैड 3-4 शॉप्स. फिर वो स्क्रैच से शुरू करके देन हाँ ही जी। मल्टीप्लाइड एवरीथिंग, एंड फिर अपने बच्चों को भी, लाइक माय फादर वेंट इनटू द नेवी, माय चाचा वेंट इनटू द आर्मी. तो उस पार्टीशन की उस सिचुएशन में वहाँ से सरगोदा से इधर कैथल आकर के पहले माचिसें बेचना शुरू किया, धीरे धीरे शॉप में उसको कन्वर्ट किया, फिर एक शॉप से 4 शॉप करी, और फिर बच्चों को पढ़ाया, और फिर वो फौज में आपके फादर ने ज्वाइन किया. तो ऐसे एक उन्होंने रीस्टैब्लिश अपनी लाइफ को और फैमिली को किया. तो ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल है, एक तजुर्बा है जो कि एल्डर्स ने फेस किया, डील किया. डिसिप्लिन देखा एज अ चाइल्ड, मतलब वी वर नेवर अलाउड टू. बताइए, आपने अपने हस्बैंड से कुछ मुल्तानी की कुछ लैंग्वेज सीखी? कुछ आपको नहीं, ऐसा कुछ आते हैं नहीं, कुछ ऐसा जानकारी? कुछ नहीं सीखा. पर आप मुल्तानी भाषा तो अच्छी तरह समझती तो हैं. मैं समझ लेती हूँ बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू पंजाबी. हाँ जी. एंड वो हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी मुल्तानी जो हैं, दे आर लाइक कजन सिस्टर्स, जो लैंग्वेजेस हैं, बोली है. नो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट कांट स्पीक मच, बट आई अंडरस्टैंड. आपने हमारे साथ बात करी, और जनरल साहब की कर्टसी से हम यहाँ आपके घर में आए, और ये हमने एक आप स्टोरी जो है सुनी है और अपने व्यूअर्स के साथ में आपने शेयर करी है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. व्यूअर्स, मेरे को उम्मीद है तो आपको ये सारी गल बात सुन के कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली हो सी, ते कुछ हौसला अफजाई भी थी हो सी, और अच्छा भी लग्या हो सी. ते मैं एक बारी वल इो अखेसा कि बोलो अपनी मिठी माँ बोली मुल्तानी, ते आखो गर्व दे नाल असां हैं मुल्तानी हिंदुस्तानी. बहु बहु धन्यवाद सबको. मेरी बहु बहु नमस्ते. जय हिंद, वंदे मातरम.